कश्मीर 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 है पाकिस्तान। कश्मीर है पाकिस्तान। कश्मीर है पाकिस्तान। अज़्म रवां और जज्बा जवां मिलकर होगी तामीर। कायद ने जो राह दिखलाई हम हैं उसकी तामील। जुल्म कर आग तुगाने वाले मेरे हक को मारने वाले ये बन के रहेगी अमन की एक तस्वीर। है कायद का फरमान एक जिस्म और एक जान। कश्मीर है पाकिस्तान। 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 एक खुदा है एक नबी और अपना एक है वतन। जान देकर भी लाज रखेंगे अपना एक है आलम। अहद मेरा आजादी का ये जज्बा है इस वादी का। माँ की ऐन दुआओं का मेरे बेटों की वफाओं का। है कायद का फरमान एक जिस्म और एक जान। कश्मीर है पाकिस्तान। कश्मीर है पाकिस्तान। कश्मीर है पाकिस्तान। कश्मीर है पाकिस्तान। अब टूट के बिखरेगा सुन ले हर हल्का है जंजीर। इस पर हम जान भी दे देंगे है अपनी ये जागीर। हम वारिस हैं इस वादी के उठी है फिर तकबीर। शहर था और सदा रहेगा अपनी ये तकदीर। है कायद का फरमान एक जिस्म और एक जान। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. कश्मीर है पाकिस्तान। कश्मीर है पाकिस्तान। कश्मीर है पाकिस्तान। कश्मीर है पाकिस्तान। बिल्कुल जी, कश्मीर है पाकिस्तान। और आज मेरी पहचान है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। आज मेरी पहचान है सब्ज हिलाली परचम। आज मेरी पहचान है पाकिस्तान। और जिस तरह आपने सॉन्ग्स में देखा कि बच्चों के हाथों में आपने सब्ज हिलाली परचम देखा, और मैं देख रहा हूँ मेरी दाईं साइड भी बाईं साइड भी सब्ज हिलाली परचम है। और अब तकरीब में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, बुनियानो मरसूस में हमारे हीरोज़, हमारे जो इस मुल्क के जो सपूत हैं, इस मुल्क के जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मिट्टी को अपने लहू से सैराब किया, उन्होंने किस तरह इस बार के हक में फ़तह हासिल की। एक डॉक्यूमेंट्री है, वो डॉक्यूमेंट्री आप देखें और आपको पता चले ये मुल्क, ये मिट्टी, ये ज़मीन ऐसे ही महफूज नहीं। इसको सैराब करने वाले वो जवान, वो हमारे बहादुर ऑफिसर्स जिनका लहू इस मिट्टी में शामिल है, उन्होंने किस तरह हमारे के हक को जीता। Widely perceived as a false flag operation, which served as a pretext for deliberate escalation. This escalation culminated in Operation Sindoor, launched as a retaliatory strike against alleged terrorist infrastructure within Pakistani territory, carrying both political signaling and military objectives. This act of aggression resulted in 33 civilian fatalities. युद्ध के हालात हैं, आदेश का पालन करना है, अब पाकिस्तान को ठोकना है। You have to nail their head to the ground. नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। India is believed to have fired
15 BrahMos supersonic cruise missiles at Pakistani air bases during Operation Sindoor. In the following days, India further escalated tensions. Drone incursions were reported deep inside Pakistani territory, targeting areas near civilian populations. That regardless of the multi-layered and multi-dimensional threat piled up against us, we stand united and reassured. Traditional or non-traditional, dynamic or proactive, whatever form of warfare is applied against us, our retribution will be sharp and painful, and we will certainly strike back far and deep. ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है. Now you just wait for our response. Pakistan retaliated against unprovoked Indian aggression with Operation Bunyana Marsus, a swift, precise response to defend its sovereignty and restore deterrence. Pakistan's armed forces responded promptly, initiating measured fire along the line of control. During the night of 6th to 7th May, Pakistan successfully downed 6 Indian aircraft, demonstrating both capability and resolve in defending its territorial integrity. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. The true strength of the operation lay not only in its tactical success, but in the unity of command. Officers and soldiers stood together, not as separate ranks, but as one, bound by duty, driven by courage, and committed to a single mission. They fought with unwavering bravery, with discipline, and with honor. A unified force, resolute in purpose, and steadfast in defense of the nation. During the course of the operation, Pakistan achieved the following successes: 5 brigade headquarters destroyed, 7 battalion headquarters neutralized, 124 enemy posts struck, 12 forced to raise white flags. A key supply depot at Uri destroyed, 4 medium gun positions targeted, 13 Bofors gun positions destroyed, 20 field gun positions neutralized, and the Islamabad Dam in the Uri sector successfully struck. सोचा भी नहीं होता कि अपने बेटे की इस तरह हो जाएगी, लेकिन चूंकि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी इस इलाके की, वो जिम्मेदारी मैंने निभानी थी। अभी अगर मैं पहले अपनी फैमिली को निकाल लेता तो वो उस जज्बे के खिलाफ है जो हमारे खून का हिस्सा है। Forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. Pakistan's military immediately conducted fire along the line of control, while also downing 6 Indian jets on the night of the 6th and 7th of May, an engagement that underscored Pakistan's resolve to defend its territorial integrity. Over the next 3 days, India escalated further. Drone incursions were reported across Pakistani territory, striking near civilian populations and military facilities. This marked a dangerous threshold. Now you just wait for our response. Pakistan had no option but to respond with force. Thus began Operation Bunyana Marsus, launched in the early hours of 10 May 2025. Operation Bunyana Marsus was a precision strike campaign conducted in compliance with international humanitarian and legal norms, focusing solely on military targets, and achieved its aim through successful engagement of various high-value military assets. The 12th Division Artillery Brigade delivered notch-above response during the Operation Marke-Haq, initiated on night 6-7th May by skillful and innovative employment of its assets for tactical interdiction, thus achieving complete surprise and creating shock and awe effect on enemy. Fire!
To achieve this overwhelming victory, 12 Division Artillery Brigade initiated preparations from the very moment the Pahalgam incident occurred. This was another Lashkar outfit with Pakistan support. Between 22nd April and 6th May, the brigade initiated series of strategic preparations which proved to be the decisive factor in achieving operational dominance and turning the tide in its favor. All gun towers were placed at forward locations to ensure rapid deployment and move of guns. While the general officer commanding and commander artillery conducted visits and command conferences to align frontline operations, keeping in view the terrain of 12 divisions' area of responsibility, Exercise Al Furqan was held to rehearse rapid move and deployment of guns. All kinds of fire plans were revised in coordination with infantry brigades. Simultaneously, improvement in counter-bombardment profiling was completed. Artillery guns were moved between different gun positions as a show of force, while communication drills, command post and planning exercises ensured effective coordination. Geotagging of enemy locations was carried out for precision targeting. When the conflict started on night 6th-7th May 2025, 12th Division Artillery was already in full motion. In response to Indian fire, Chinar gunners retaliated with discipline and precision. Gun positions across all sectors opened up and simultaneously started to engage multiple targets, including forward posts, headquarters, command and control nodes, supply and ammunition points, thus achieving complete surprise and catching the enemy entirely off guard. Allahu Akbar! The enemy was fiercely engaged from the night of May 6th and 7th to night of May 9th and 10th, leaving no room for recovery or retaliation. Each night, a range of high-value targets, including brigade headquarters, artillery gun positions, and infantry positions, including battalion headquarters, were relentlessly struck. Across the operation, 3 forward cantonments, 7 brigade headquarters, 40 artillery positions, and over 200 infantry locations were neutralized, including 27 battalion command posts. A critical supply depot was also destroyed, crippling enemy logistics and command capabilities. On 10 May 2025, 12 Division Artillery Brigade had the honor of participating in Army-level fire plan as part of Operation Bunyana Marsus, and was given responsibility for synchronized engagement and destruction of multiple targets using mixed calibers. बताना है कि भारत के सप्लाई डिपो उड़ी को भी तबाह किया गया है। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप को तबाह कर दिया गया। भारत की आर्टिलरी गन पोजीशन देरंगारी को तबाह कर दिया गया है। Precise artillery fire by gunners marked the culmination of Operation Mark-e-Haq in favor of Pakistan. Victory of Pakistan in this conflict will be cherished in years to come. 12 Division Artillery Brigade fired 12,699 artillery rounds within short duration of 4 days, causing paralysis on the enemy and denying notion of victory. During Operation Mark-e-Haq, 12 Division Artillery employed effective measures aimed at keeping enemy's artillery off balance, despite her numerical superiority in artillery assets. Some of the most notable practices include employment of artillery to deliver a strong offensive punch, breaking away from its usual defensive deployment, deployment of SH-15 guns across the entire division front, enabling simultaneous strikes and complicating the enemy's prioritization of response. Moreover, shoot and scoot tactics by SH-15 guns created shock and disrupted enemy momentum. Multiple gun positions fired different calibers simultaneously, overwhelming the enemy's situational awareness and response. Medium caliber guns executed inter-valley fire, creating tactical surprise and disrupting enemy depth across multiple axes. Each gun position engaged several targets using different centers of arcs, allowing rapid target shifts from a single location. All gun positions ensured continuous fire support under hostile counter-bombardment. Despite a numerical disadvantage in artillery, facing a tube ratio of 1:1.7 after induction of 100 additional tubes by India,
Undeniable firepower ascendancy was even then achieved by Pakistan. Enemy expectations that Pakistani artillery would be immobile, reactionary, and fragmented were proven false on every front. It showed that in future battles, especially those fought in the shadow of escalation and high-technology warfare, artillery will not merely serve as a supporting force, but will become the center of gravity for combat power. The whole nation, especially the people of Azad, Jammu, and Kashmir, expressed profound gratitude to the Chinar gunners for their decisive role in Marke-Haq and a resolute stand against the adversary. All praise to Allah, whose divine guidance and protection enabled Chinar gunners to stand firm in the face of aggression. It is by His will alone that honor and victory were granted to our nation and its defenders. With unshakable faith and unmatched readiness, we stand ever prepared to defend the sacred motherland against any aggression, now and always. हो हल्का है यारां तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का है यारां तो बरेशम की तरह नर्म, हो रज़्म हक़ व बातिल तो फौलाद है मोमिन। ये वो लम्हा था, ये वो टाइम था जब पाकिस्तान ने दुनिया को तस्लीम करवाया कि हम जंगें जो हैं वो हथियारों से नहीं, जज्बों से लड़ी जाती हैं, वो मोहब्बत से लड़ी जाती हैं और जज्बा शहादत से लड़ी जाती हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो मकाम दिया, वो मर्तबा दिया जिसे दुनिया ने तस्लीम किया, और 6-0 का स्कोर जो था वो हिंदुस्तान की तारीख में लिखा गया है कि हिंदुस्तान वो ज़ख्म कभी नहीं भूलेगा। और ये स्कोर इससे बढ़ सकता था, लेकिन हमने ज़िम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया और हमने ये साबित किया कि हम अमन पसंद लोग हैं। लेकिन जब तुम हमारी खुद मुख्तारी पे हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करोगे तो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल हो सकता है। लेकिन ये जंगें जो होती हैं, इनके पीछे जो हीरोज़ होते हैं उनको सलाम पेश करना, उनको उनकी जज्बा अकीदत को सलाम पेश करना, ये हम सब का फ़र्ज़ है। और जिस तरह इस मार्के के बाद दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, ये अल्लाह ताला का करम है। और एक आखिरी सवाल, इसके बाद मैं माइक जो है फरा के हवाले करूँगा। इस प्रोग्राम का अगला जो है वो राउंड शुरू होने वाला है इस बज़्म का। ये मार्का जो था, ये मार्का सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये पाकिस्तानी कौम और हमारी मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की जॉइंट कोलैबोरेशन थी। और कौम ने साबित किया कि वो हर लम्हा, कश्मीरी कौम, पाकिस्तानी कौम एक हैं, एक साथ हैं, एक जान है। और दुनिया में आपको शायद नहीं पता होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका के जो हैं, बरतानिया के जो हैं, चाइना को जो हैं, उनका नाम आपको नहीं पता होगा, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है और पूरी दुनिया मानती है। जी हाँ, ये है मार्काए हक का जश्न। और ये मार्काए हक सिर्फ एक कामयाबी नहीं है, मैं बताती चलूं कि ये हक और बातिल के बीच में खिंची हुई वो लकीर है जिससे पाकिस्तानियों ने, आज़ाद कश्मीरियों ने ये साबित किया है कि हमारे दिल में हुब्बुल वतनी के लिए कुर्बानी का जज्बा ना पहले कम था, ना आज कम है, ना कभी कम होगा। तो जोरदार तालियों से बताएं, ये मोहब्बत, ये कुर्बानी, ये जज्बा आपकी वजह से है। तो हम बात करें मार्काए हक की, और आज का ये जो समा है, एक बार फिर मुजफ्फराबाद की हसीन वादियों के बीच में मैं हाजिर हूँ ये मार्काए हक का जश्न लेकर के। आज इस मार्काए हक को पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन मैं बता दूं कि जितना जोश पहले था 1 साल पहले, उससे कई गुना आज है कश्मीरियों? क्या बात। और मुझे आपका ये जोश आज रात तक ऐसे ही चाहिए, क्योंकि जब हम मार्काए हक की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी वो कामयाबी नहीं है जो शायद हमने एक जंग जीत के हासिल की है, ये वो आपके भरोसे की कामयाबी है। और आज की ये जो खूबसूरत तकरीब आपके सामने पेश की गई है, ये पेश की गई है हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ पाक आर्मी 1 AK ब्रिगेड, सेक्टर हेडक्वार्टर ISPR आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के जॉइंट विजन से। तो एक बार तमाम ऑर्गेनाइजर्स के लिए भरपूर तालियां बजाएं।
ये वो जज्बा है पाकिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का, क्योंकि जब जब हम कहते हैं पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान, मार्का हक के जज्बे को एक बार फिर जीते हैं। और इस इवेंट का बाकायदा तौर पे आगाज़ होगा नेशनल एंथम पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के, और आपने नेशनल एंथम हमारे साथ गाना भी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर पाइंदाबाद। आप सबको ऑपरेशन बुनियादुल महसूस का कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर बहुत बहुत मुबारक। तो आज के इस खूबसूरत इवेंट में, खूबसूरत शाम में ख़ास बात यह है कि न सिर्फ पाकिस्तान के नामवर गुलकार बल्कि आज़ाद कश्मीर के फ़नकार भी हिस्सा ले रहे हैं। फरा जो आर्टिस्ट की आपने बात की वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अभी स्टेज पे हमारे अगले आइटम में आर्टिस्ट यहाँ पे आएंगे। और ख़ास बात यह है कि अपने तमाम मेहमानों को वेलकम करेंगे खूबसूरत फूलों की पत्तियाँ निछावर करके। वाह। और फरा एक ख़ास बात आज जो देखेंगे वो कश्मीरी लिबास फेरन ज़ेब तन किए हुए होंगे, जिसमें हमारा कश्मीरी कल्चर भी दिखाई देगा। लेकिन अपने जो इतने ज़्यादा माशाल्लाह बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में मेहमान यहाँ पे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि आपने भरपूर क्लैपिंग करके उनको वेलकम करना है। तो क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। और वैसे ही कश्मीरी इतने खूबसूरत है फेरन पहन के, तो बस आई कैन इमेजिन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने आर्टिस्ट को स्टेज पे दावत देते हैं। बिल्कुल फरा, आज़ाद जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की जानब से एक बहुत खूबसूरत फनकारों का दस्ता लिपसिंग करेंगे राजा इमरान और रुस्तम चार्ली, जो कि पाकिस्तानी हमारे पास वो अवार्ड उनको हासिल है। इसके अलावा कह सकते हैं बिलाल बलोच हैं, बच्चियां हैं और दीगर फनकार हैं। लेकिन भरपूर क्लैपिंग करके आप उन्हें वेलकम करना है। तशरीफ लाते हैं रुस्तम चार्ली, बिलाल बलोच और टीम रिंद पोशमाल गिंदने लो लो।
शाबाश चाइन पूजाई लोलो रिंद पोश माल किंदने द्राई लोलो रिंद पोश माल किंदने द्राई लोलो शुभ शाबाश चाइन पूजाई लोलो रिंद पोश माल किंदने द्राई लोलो आवाज नहीं आ रही आपकी ये चीज कल मोहे स्थलची अश्क
शाबाश चाइन पूजाई लोलो रिंद पोशमाल गिंदने दाई लोलो बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस। और अब हम अपने देखें इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी परफॉर्मेंसेस हमने आपके लिए प्लान किया है। जश्न की बात हो रही है तो जश्न का भी लेवल होना चाहिए। तो हम अपने नेक्स्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की तरफ चलेंगे। मैं आज के इस प्रोग्राम में आज अपने उन कश्मीरी बहनों और भाइयों को जो कि मकबूजा कश्मीर में हैं उन तक ये पैगाम दूंगा कि आपके साथ हम हैं और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जल्द, बहुत जल्द भारत के जुल्म सितम से हमारा कश्मीर आज़ाद होगा और हम सब मिलकर आज़ाद फिजाओं में सांस लेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान और पाकिस्तान अफवाज हमेशा आपके साथ है। और अब बारी है उन प्यारे प्यारे बच्चियों की परफॉर्मेंस की जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने देखी है बैक स्टेज और आई जस्ट कांट वेट कि वो यहाँ पे आकर आप लोगों के लिए परफॉर्म करें। जी बिल्कुल फरा, जो कि एक मिली नगमा पेश करेंगी, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। जहाद हक के लिए कर रहे हैं तैयारी, जहाद हक के लिए कर रहे हैं तैयारी। दिखाएंगे सफे दुश्मन को शान का हारी, दिखाएंगे सफे दुश्मन को शान का हारी। तेरी फिजाओं में कलियां खिलाएंगे एक दिन, तेरी फिजाओं में कलियां खिलाएंगे एक दिन। मेरे वतन तेरी जन्नत
आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की जानब से मुनक्ता इस खूबसूरत शाम में एक बार फिर जो नए मेहमान आए हैं उन्हें भी हम वेलकम करते हैं। मेरे साथ फरा मौजूद हैं। जी हाँ तैमूर, ये तो आगाज़ है। मैंने यहाँ पर आते साथ ही बोला था कि ये जो आज का जश्न है मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने का, वो पूरा आज़ाद कश्मीर से लेकर के पूरी दुनिया याद रखेगी, क्योंकि ये जश्न सिर्फ आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में नहीं हो रहा, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। तो आइए इस हुब्बुल वतनी को, इस जोश और जज्बे को और बढ़ाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर स्टेज पे परफॉर्मर आ रहे हैं वो ऐसा ही जोशीला मिली नगमा डुएट लेकर के आ रहे हैं। जी बिल्कुल फरा, और हमने दुनिया को ये बावर करवाया कि हम सब एक हैं। तो इसी नगमे से शुरू करेंगी हमारी गुलकारा नताशा खान और उनके साथ हैं डॉक्टर अब्दुल बासित। झंडे ऊपर होंगे आपके, क्या बात। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस है, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा बाइस के, तुम हो पास बाइस के, तुम हो नगमा बाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारी है, कहकशां के उजाले राह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बिशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है, असासा है दिलेरों का, शहीदों की अमानत है, तावन ही तावन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, जब भी तारीख ले, जब भी तारीख ले रखा है इसका नाम पाकिस्तान, 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 मेरा इनाम पाकिस्तान। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे, मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे, खिज़ा से तुझको बचा के रखूं, बाहर तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन, मेरे वतन। यहाँ शहबाज कलंदर, यहाँ दाता का लंगर, यहाँ गुरु नानक जी है, यहाँ इमाम बरी है, यहाँ पर बुल्ले शाह है, यहाँ सुल्तान बहू है, यहाँ शाह शम्स आए, यहाँ सच्चे साईं है। काली कमली की छाँव में, काली कमली की छाँव रहेंगे दोनों जहां, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे
पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए हो। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। हर दिल के उफक पर है चांद एक सितारा एक, है कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा है। हर दिल के उफक पर है चांद एक सितारा एक, है कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा है। हम यक दिल हम यक जान, हम यक दिल हम यक जान। हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है। हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया, है मर्द मुजाहिद जागरा अब वक्त शहादत है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वतन की मट्टी अजीम है तू, अजीम कर हम बना रहे हैं, गवाह रहना वतन की मट्टी अजीम है तू, वतन की मट्टी बना रहे हैं गवाह रहना। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया, ए मर्द मुजाहिद जागरा अब वक्त शहादत है। वाइंड अप करेंगे। अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान। मैं आज़ाद कश्मीरियों से पूछना चाहूँगी कि उन्हें याद हो तो बिल्कुल 1 साल पहले 6 मई को ही 2025 को इंडिया ने अटैक किया था आज़ाद कश्मीर पे, और तब सबने यही कहा था कि हम पाकिस्तान कभी भी जंग का आगाज़ नहीं करते, लेकिन कोई अगर हमारी तरफ बढ़ता है तो हम उनको इबरत का निशान बना देते हैं, और ये इबरत का निशान आज पूरी दुनिया मानती है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज सिर्फ एक अदारा नहीं बल्कि कौमी यकजहती, भाईचारे और इत्तेहाद की अजीम अलामत है। आपने इस वीडियो में सुना होगा सरदार जी ने कहा कि ये पाकिस्तान, और मैं कहती हूँ ये आज़ाद जम्मू कश्मीर सिर्फ नक्शा नहीं है, ये हमारा घर है, ये हमारी सरजमीन है। और मैं तमाम हमारे माइनॉरिटी ऑफिसर्स को सलाम पेश करती हूँ। सबको मुबारक कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और दिफा की खातिर। और इंशाल्लाह आज की इस खूबसूरत शाम में आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से भी ये खूबसूरत पैगाम हम देंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान को, कि हम आपके साथ हैं। दुनिया को, जी हाँ। और अब मैं देख रही हूँ कि जो हुब्बुल वतनी का जो जोश और जज्बा है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अभी चलते हैं हम अपने सिंगर की जानब, जो हमारे अपने अगले आज़ाद कश्मीर के मारूफ गुलकार हैं, यंग टैलेंटेड आवाज़
मिली नगमा ए वतन प्यारे वतन पाक वतन पेश करने के लिए तशरीफ लाएंगे ज़ुहैब ज़मान। आप सबका साथ चाहिए होगा। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। ऐ वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्ना की दुनिया पुरनू, तुझसे है मेरी तमन्ना की दुनिया पुरनू। अज़्म मेरा कवी मेरे इरादे हैं गय्यूर, मेरी हस्ती में आना है मेरी मस्ती में शऊर। जा फिज़ा मेरा तख़य्युल है तो शीरीं है सुख़न, ऐ मेरे प्यारे वतन। मेरे साथ मिलके प्लीज। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दया। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दया। मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हसा। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाऊं निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया है तन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन, पाक वतन ऐ मेरे प्यारे वतन। जी, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस। जितने भी पाकिस्तान का जिक्र करें उतना कम है। कोई भी मिली नगमा हम शुरू करते हैं तो हमारे दिल में वैसे ही जोश और जज्बा जाग जाता है।